So, a very good morning to students. Students, previously we have discussed over some general introductions related to engineering mechanics. Those were mechanics, physics mechanics, what is the classification of mechanics, that is static mechanics and a dynamic mechanics. Previously we have discussed over it. Then we have discussed over the kinematic mechanics, the kinetic mechanics, elastic body, rigid body, particle matter, and I have given you a work or a task to tell me what is a mass and what is a weight. Students, now all of you are going to give me the answers for what is mass and what is weight in a Google Classroom. I'm going to upload a question over there that what is a mass and what is a weight and a comparison between or a distinguish between weight and a mass. Okay, so you are going to answer me there that what is the differentiation point between the mass and a weight. Okay. Further, we have discussed over the force. What is a force and force is an external agency, external dhakka. That is not from the coming from the pen itself. It is coming from the external agent. Okay, so it's an external agency which changes or tries to change the state of the body. See, we are changing the state of the body. We are uh, moving the body from the rest position. Okay, so we are changing the state of the body by the application of the external agency, by the application of the external agency. So this external agency is called as a force. A force always requires three things with it, that is a direction, and a magnitude, and a point of application. Any force cannot be recognized without all of these three criteria, or these three important significance. Okay, so if I'm applying a force, it must require the direction कि मैं force लगा रखा हूँ, the point of application, at which point I'm applying a force, and ताकत, the strength, the magnitude at which I'm going to apply the force. अगर ज़्यादा ताकत से लगाऊंगा तो जल्दी भाग जाएगा, कम ताकत से लगाऊंगा तो धीरे धीरे. So if the magnitude directly is proportional to the effect of the force on a body. Okay. So these three things are required along with the force. Then we have discussed over the principle of transmissibility, which says अगर गाड़ी को सामने से खींचो या पीछे से धक्का दो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भले अलग अलग रहे लेकिन लाइन ऑफ एक्शन सेम रहना चाहिए, तो इफेक्ट सेम रहेगा. करेक्ट है. अगर फोर्स को यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ से धक्का दो या यहाँ से खींचो विथ सेम मैग्नीट्यूड दैट इज 5 kN, सेम मैग्नीट्यूड दैट इज 5 kN, अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो इफेक्ट सेम रहेगा. दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी. Force system. What is force system? When more than one number of force is acting on a body, then it is called as a force system. अगर किसी बॉडी पे एक नंबर से ज्यादा फोर्स रहे तो उसको हम फोर्स सिस्टम कहते हैं. Then we have discussed about the classifications of force system, which was a bit lengthier part. So we are skipping it now and directly heading up to the resolution of forces, which says the splitting of force in two part is called as the resolution of forces. अगर force inclined है तो आप inclined force से mechanics में deal नहीं करोगे. You are going to split it out into two components. One will go in the x direction and the other one will go in the y direction. Okay. And then you are going to deal with this two components of an inclined force. inclined force को छोड़ के उसके दो components से आप deal करोगे जो x में और y में जाएगा, क्योंकि आप only going to deal with the horizontal and the vertical forces only in engineering mechanics. Okay, तो आपको पता चल गया था किस तरीके से हम स्प्लिट करते हैं फोर्सेस को. मैंने कुछ एग्जांपल्स बनाए हुए हैं, so let's go through with it. See, if the force is like this, if the force is like this, okay, देखिए अगर फोर्स ऐसा जाता हुआ दिख रहा है तो व्हाट यू आर गोइंग टू, आप उसका लाइन ऑफ एक्शन देखोगे. आप उसका लाइन ऑफ एक्शन देखोगे. लाइन ऑफ एक्शन क्या बता रहा है कि वो फोर्स सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है. देखिए उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या बता रहा है कि वो फोर्स सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है. आप क्या करोगे, उसके ओरिजिन पे एक्सिस बनाओगे. उसके ओरिजिन पे आप एक्सिस बनाओगे. करेक्ट है. मैंने ये यहाँ पर कर चुका हूँ ऑलरेडी. ये एक फोर्स है,
दिख रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो इसके ओरिजिन पे मैंने ग्राफ बना लिया। पता चल गया मुझे ये कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, इट इज कमिंग इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट की जो एक्सिस है वो इस फोर्स के कंपोनेंट बन जाते हैं, वो इस फोर्स के कंपोनेंट बन जाते हैं। ठीक है, एक्स में जाने वाला फोर्स एफ एक्स, वाई में जाने वाला फोर्स एफ वाई, दोनों को एक एक वैल्यू मिलेगी। द वैल्यू विल बी आइदर एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, विच डिपेंड्स कंप्लीटली ओवर विथ थीटा। तो आप थीटा चेक करोगे, इफ द थीटा ऑफ अ फोर्स, अगर ये फोर्स का थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो आप एक्स कॉम्पोनेंट को कॉस दोगे, बचे वाले को साइन दोगे, और दोनों के सामने उसके फादर का नाम, दैट इज एफ। ओके, आई होप इट इज क्लियर। सेकेंड, सपोज द फोर्स इज रनिंग लाइक दिस। क्या करोगे आप, इसका लाइन ऑफ एक्शन चेक करोगे। लाइन ऑफ एक्शन बता रहा है कि ये जा रहा है इन थर्ड क्वाड्रेंट। कैसे पता करोगे, सीधा सीधा आप ओरिजिन पकड़ोगे, ओरिजिन से आप ग्राफ बना लोगे, पता चल गया इट इज कमिंग इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसका नाम अगर एफ है, तो इस एक्सिस के जो कंपोनेंट्स है, इस एक्सिस, सॉरी, इस ग्राफ, इस क्वाड्रेंट की जो एक्सिस है वो हमारे कंपोनेंट्स बन जाएंगे। एक्स में भागने वाला एफ एक्स, वाई में भागने वाला एफ वाई, इक्वल टू एक की वैल्यू एफ कॉस थीटा, एक की वैल्यू एफ साइन थीटा, विच डिपेंड्स अपॉन थीटा। So if the theta is given, if the theta of any force is given with respect to x, तो x component को मिलेगा cos थीटा, बच्चे वाले को sin थीटा, दोनों के सामने उनके फादर का नाम, दैट इज एफ। ओके, आई होप इट इज क्लियर। आगे चलते हैं, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। इफ द फोर्स इज रनिंग लाइक दिस, द फोर्स इज रनिंग लाइक दिस, आप इसका लाइन ऑफ एक्शन चेक करोगे कि भाई फोर्स जा रहा कौन से क्वाड्रेंट में, पता चल रहा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है ना। नहीं समझ में आया तो आप क्या करोगे, आप ओरिजिन पर एक्सिस बना लोगे। तो ये मैंने ओरिजिन पकड़ा और ग्राफ बना लिया। ग्राफ ने मुझे बता दिया ये फोर्स तो जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर इसका नाम एफ है, तो इसके दो कंपोनेंट कैसे बनेंगे, जो उस क्वाड्रेंट के एक्सिस रहेंगे। क्वाड्रेंट के एक्सिस, एक राइट में एक डाउन में। एक्स में भागने वाला एफ एक्स, वाई में भागने वाला एफ वाई। एक की वैल्यू एफ कॉस थीटा, एक की वैल्यू एफ साइन थीटा। सपोज द एंगल इज गिवन टू यू विद रिस्पेक्ट टू वाई, द एंगल ऑफ अ फोर्स इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई वाले कंपोनेंट को मिलेगा cos थीटा, एक्स वाले कंपोनेंट को sin थीटा, दोनों के सामने पेरेंट नेम दैट इज एफ। तो एक बन गया एफ cos थीटा, एक बन गया एफ sin थीटा। यहाँ एफ वाई को cos मिला है, वजह एंगल इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। आई होप दैट इज क्लियर। आगे चलते हैं, क्योंकि हमने फॉर्मूला पर बात कर लिया है, अब हम वैल्यूज पुट अप करके आंसर निकालेंगे उनके कंपोनेंट्स की। ठीक है, तो वैल्यूज पुट अप करता हूँ मैं। ठीक, वही एग्जांपल बनाया मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट वाला, दैट द फोर्स इज रनिंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मैंने ओरिजिन से एक्सिस बना लिया हूँ। पता चल रहा है एक, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के एक्सेस उनके कंपोनेंट्स बन गए। राइट में जाने वाला एफ एक्स, डाउन में जाने वाला एफ वाई। एंगल इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, एंगल इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो वाई कंपोनेंट को मिलेगा एफ कॉस थीटा, बचे वाले को एफ साइन थीटा। अब क्योंकि मैंने वैल्यू पुट अप कर दिया हूँ, एफ की वैल्यू आपको दिया हूँ 400 के लिए, the angle is given to you that is 25 degree. So you are just going to put up the values of f and theta in the formula and will get the answer of the component. Okay. So the formula says Fi equals to f cos theta. So f की value 400, cos theta is 25. The formula for fx is f sin theta. The value of f is 400. The value of theta is 25. You are just going to calculate it with the help of the calculators. So the formula, the values are 400 cos 25. So 400 cos 25. That gives me the value as 362.52. Here you can see the values are 362.52. ओके, ये हो गई आपकी वैल्यू एफ वाई की। ठीक है,
अब हम एफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एफ एक्स का फॉर्मूला एफ साइन थीटा, वैल्यू के फॉर्म में 400 साइन 25, तो 400 साइन 25, वैल्यू कम्स आउट टू बी 169। So this is the value of your fx. Hope it is clear. एक और एग्जांपल लेते हैं। See, the force is inclined and is running in the third quadrant. आपने कैसे पता किया? आपने ओरिजिन पर एक्सिस बनाकर पता किया। ये फोर्स थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के एक्सिस बन गए उसके कंपोनेंट। एक्स में जाने वाला एफ एक्स, वाई में जाने वाला एफ वाई। फॉर्मूला क्या रहेगा? आइदर एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, विच डिपेंड्स अपॉन द थीटा। फोर्स का एंगल इज गिवन टू यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो एफ एक्स का फॉर्मूला एफ कॉस थीटा, बचे वाले का एफ साइन थीटा। मैंने वैल्यू दे दिया वो आपको। द वैल्यू ऑफ एफ इज 50 किलो न्यूटन, द वैल्यू ऑफ द थीटा इज 30 डिग्री। आप एफ की जगह 50 डालोगे, दैट इज 50 किलो न्यूटन, एंड थीटा 30 डिग्री, और वैल्यू निकाल लोगे 50 cos 30, द वैल्यू इज 43.3। ठीक, वैल्यू आ गई 43.3। यहाँ पे भी आप वही करोगे, एफ की वैल्यू 50, थीटा की वैल्यू 30, आंसर इज 25। तो एफ वाई की वैल्यू आ गई आपकी 25। इस तरीके से आप रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस करके कंपोनेंट्स की वैल्यू निकालते हो। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू गिव यू एन एक्सरसाइज ओवर दिस एज एन असाइनमेंट, जो मैं आपको गूगल क्लासरूम पर अपलोड कर दूंगा। आपको वहीं पर क्या करना है, इन एक्सरसाइज को सॉल्व करके उसकी क्लिक लेकर पीडीएफ के फॉर्म में मुझे सेंड करना है, और आप फाइल का नेम रीनेम कर आपका रोल नंबर और आपका सेक्शन रखोगे। सपोज इफ अ सेक्शन ए स्टूडेंट with a roll number 25 is submitting his file, then he is going to rename his file as A25. That's it. Okay. So that will be the assignment file of roll number A25. Okay. So here are your assignments. So very first question is, find the value of component fx and fy of an inclined plane, of an inclined force F equals to 90 kilonewton, inclined at 40 degree with respect to x-axis, showing the direction of force as upward and rightward। देखिए क्या बोल रहे हो, आपको वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है? कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट्स के नाम एफ एक्स एफ वाई। ये किसके कंपोनेंट्स होंगे? एक इंक्लाइन फोर्स के। इंक्लाइन फोर्स कितना मैग्नीट्यूड का है? 90 किलो न्यूटन का। कैसा है? इंक्लाइंड है एट 40 डिग्री। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। शोइंग द डायरेक्शन, हाउ इट इज, आपको उसकी डायरेक्शन, आपको उसका किस तरीके से वो कहाँ जा रहा है वो पता होना जरूरी है। तो बता रहे हो शोइंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एज अपवर्ड एंड राइटवर्ड। ना वो क्लियरली अपवर्ड जा रहा है, ना वो क्लियरली राइटवर्ड जा रहा है, वो अपवर्ड एंड राइटवर्ड जा रहा है। दैट मीन्स वो इस तरीके से जा रहा है। ओके, तो ये आपको बनाना है। दिस इज नॉट गिवन टू यू। अपवर्ड एंड राइटवर्ड मीन्स इस तरीके से वो इंक्लाइंड फोर्स है। फोर्स की वैल्यू कितनी है? 90 किलो न्यूटन। इसका इंक्लिनेशन है 40 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो मैंने ये क्या किया हूँ, एक्स एक्सिस बनाया हूँ और 40 डिग्री उसका एंगल शो किया हूँ। ठीक है, आपको क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ कंपोनेंट एफ एक्स एंड एफ वाई। आपको एफ एक्स एंड एफ वाई निकालना है। आई होप ये निकाल लोगे आप लोग। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन इज, resolve the force F equals to 450 kilonewton inclined at 30 degree with x-axis. Force F falls in second quadrant। बता दिया उसने सीधे सीधे, the force is falling in second quadrant, यानी कि वो इस तरीके से ऐसा कुछ है। ठीक है, आप यहाँ पे एक्सिस बना लोगे पहली फुर्सत में। ये सेकंड क्वाड्रेंट में फोर्स, फोर्स की वैल्यू है 450 किलो न्यूटन और उसका एंगल कितना है? 30 डिग्री। किससे है? एक्स से। बस आप क्या करोगे, ये एफ एक्स निकाल लोगे और ये एफ वाई निकाल लोगे। आई होप ये आ जाएगा आप लोगों को। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, which will give you multiple forces, and multiple forces acting on a body is called as a force system। तो आपको यहाँ पे देखिए फोर्स सिस्टम गिवन है। फोर्स सिस्टम हैविंग थ्री फोर्सेस। ठीक है, क्या निकालना है? फाइंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस शोन इन फिगर। द फिगर इज शोन टू यू। यहाँ पे तीन फोर्सेस है, एफ
P and Q। ठीक है, यहाँ पर F फोर्स का मैग्नीट्यूड 100 किलो न्यूटन है, उसका एंगल 30 डिग्री है विद रिस्पेक्ट टू इट। इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे। कौन से दो कंपोनेंट रहेंगे उसके? एक ये रहेगा, एक ये रहेगा। ठीक है, second force is given to you, that is P. It is in fourth quadrant. The value is 140 kilonewton and its inclination is 20 degree with respect to y। आप यहाँ पे गड़बड़ नहीं करेंगे। पहला फोर्स F का एंगल है 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू x और P का फोर्स है 20 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पर x कंपोनेंट को कॉस मिलेगा और इस केस में y कंपोनेंट को कॉस मिलेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर भी आपको Px और Py निकाल के दिखाना है। इन दिस here you are having the third force, the value of which is 300 kilonewton, and the angle is not given to you directly, but it is given to you in the form of a slope. Here the slope is given, that is 3:1, 3 horizontal is to 1 vertical। Okay, यहाँ पर आपको इस स्लोप का एंगल निकाल के ऑल्टरनेट यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ आपको दिखा रहा है 3:2 का स्लोप। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ और उसके हिसाब से आप इसको सॉल्व कर लेना। So the example is given to you here, the slope of an inclined force is given as 4 horizontal to 3 vertical। Okay, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर एक ट्रायंगल बन चुका है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको आता है, तो ये आपका हाइपोटेनियस पार्ट हुआ, ये आपका ऑपोजिट पार्ट हुआ, ये आपका एडजेसेंट साइड हुआ। करेक्ट है? आप क्या करोगे, ये थीटा निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? बाय अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो tan थीटा अगर मैं लगाता हूँ तो दैट इज tan theta is opposite upon adjacent, where opposite is 3 and adjacent is 4। आपने tan theta की वैल्यू निकाला, 3/4 से आई है 0.75। आप tan को उधर कर दोगे तो बन गया tan इनवर्स ऑफ 0.75, दिस विल गिव मी द वैल्यू एज 36.87। तो मुझे एंगल मिल गया थीटा का, दैट इज 36.87। फोर्स का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैंने वही किया, इसी फोर्स का यहाँ पर एक्स एक्सिस बना लिया और उसी एंगल को यहाँ पुट कर दिया। इंक्लाइन का एंगल x से 36.87, इंक्लाइन का एंगल x से 36.87, ऑल्टरनेट। करेक्ट है? यहाँ भी आप वही करोगे। कैसे निकालोगे? tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट, दैट इज 2 एंड एडजेसेंट दैट इज 3। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2/3। ये आपको थीटा मिल जाएगा और ये थीटा को आप ऑल्टरनेट यहाँ पुट अप कर दोगे, फिर आप QX एंड QY निकाल लोगे। सो दिस इज a task, an assignment which is required to be completed by Saturday, that is 19th of June। So that's it with today's lecture. Thank you very much.